تاریخ میں عمران خان دوسرے ایسے وزیر اعظم ہیں جو رضاکارانہ طور پر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اسمبلی سے۔ اس سے پہلے 1993 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت اعتماد کا ووٹ لیا تھا اسمبلی سے جب سپریم کورٹ سے ان کے اقتدار کو بحال کیا گیا تھا۔ 2009 میں 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں اعتماد کا ووٹ لینے کی شک ختم کر دی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے رضاکارانہ طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک قرارداد پیش کریں گے جس کے بعد اعتماد کے ووٹ کی کارروائی شروع ہوگی۔ اس وقت یہ مناظر قومی اسمبلی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کچھ دیر پہلے ہی شدید ہنگامہ آرائی کی صورتحال رہی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما موجود تھے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پر ایک ہنگامہ آرائی کی جس کے بعد صورتحال کافی دیر تک کشیدہ رہی۔ پولیس نے اب کسی حد تک اس کو کنٹرول کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، مصدق ملک نے گفتگو کی اور وہاں سے وہ پارلیمنٹ لاجز جا چکے ہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے، جہاں پر اراکین اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ کل ایک مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی تاکہ یقینی بنایا جائے اراکین اسمبلی کی حاضری کو، اور وزیر اعظم عمران خان کو آج 172 اراکین قومی اسمبلی کے ووٹس درکار ہیں۔ آج وہ اب سے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ حکومتی اتحاد کے پاس 180 نشستیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے پاس 156 سیٹس ہیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں میں مسلم لیگ کاف جس کی 5 نشستیں ہیں، MQM کی 7 نشستیں ہیں، GGA کے پاس 3، عوامی مسلم لیگ کے پاس 1 نشست ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کی پاس 5 نشستیں ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر دے گا، اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہوں گے۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم
إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پا لیتا ہے جو رات کو نماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو. وما علینا الا البلاغ. شوق نیازو عز کے سانچے میں ڈھل کے یہ چاہے حبیب ہے پلکوں سے چل کے یہ کچھ آئے حبیب ہے. آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے یہ کچھ آئے حبیب ہے. امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے یہ کچھ آئے حبیب ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس. تلاوت قرآن پاک سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم عمران خان اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. وزیراعظم عمران خان دیگر اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ اس وقت اسمبلی ہال میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی جس میں وزیراعظم عمران خان
इस असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़र कौमी असम्बली से देख रहे हैं, जहां पर ये इजलास मुनाकिद किया गया है वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट हासिल करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। हुकूमत को 180 अरकान की हिमायत हासिल है। अब से कुछ देर में ये कार्रवाई शुरू होगी और ये कार्रवाई कौमी असम्बली के स्पीकर शुरू करेंगे, जिसके बाद जो करारदाद पेश की जाएगी एतमाद के वोट के लिए, उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। स्पीकर की जानिब से ये करारदाद पढ़ी जाएगी और फिर एतमाद का वोट हासिल करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मिस्टर महदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, टू मूव आइटम नंबर 2। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, खैर है सर। Mr. Speaker, with your permission, I beg to move that this House reposes confidence in the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, as required under Clause 7 of Article 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Honorable members, before we start the process of vote of confidence in the Prime Minister, I explain the procedure to be adopted. Whenever the Prime Minister has to obtain a vote of confidence under Clause 7 of Article 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, voting shall be recorded in accordance with the procedure set out in the second schedule to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007. Before voting commences, the Speaker shall direct that the bills be rung for 5 minutes to enable the members who are not present in the chamber to be present. Immediately after the bills stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked and the assembly staff posted at each entrance shall not allow any entry or exit through these entrances until the process of voting has concluded. The Speaker shall then read out the resolution before the House and ask the member who wish to vote in favor of the resolution to pass in single file through the entrance where tellers shall be posted to record the votes. On the reaching the desk of the tellers, each member shall in turn call out the division number allotted to. The teller shall then mark up his number on the division list simultaneously, calling out the name of the member. In order to ensure that his vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller's call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until bells are rung again on the completion of this process. When Speaker finds that all the members who wish to vote have recorded their votes, he shall announce that the voting has concluded. Thereupon, Secretary National Assembly shall have the division list collected, count the recorded votes and present the result to the count to the Speaker. Speaker thereafter shall direct that the bills be rung for 2 minutes to enable the members to return to the chamber. After the bills stop ringing, Speaker shall announce the result to the Assembly. Speaker shall also intimate the result to the President in writing. Process of voting. Now we are start the process of voting. Bills be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be presented.
वोट की कार्रवाई का तरीक़ेकार बताया है और अब उन्होंने ऐलान किया कि घंटी बजाई जाएगी। तकरीबन 5 मिनट का वक्त इसके लिए मुकर्रर है। इस मकसद के लिए कि जो अरकान असेंबली में मौजूद नहीं हैं वो असेंबली में आ जाएं, चूंकि उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लॉबी की तरफ ना कोई जा सकता है और ना ही कोई बाहर से इस कौमी असेंबली हॉल में आ सकता है, जिसके बाद बाकायदा एतमाद के वोट की कार्रवाई का आगाज होना है। स्पीकर ने पूरा इस बारे में तरीक़ेकार पढ़कर सुनाया है और उसके बाद 5 मिनट के लिए घंटी बजाई जाएगी या उन अरकान का इंतजार किया जाएगा। अगर कोई ऐसे अरकान कौमी असेंबली जो इस वक्त तक इजलास में मौजूद नहीं है, उसके बाद दरवाजे बंद किए जाएंगे और फिर बाकायदा एतमाद के वोट की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो उस वक्त एक जगह पर जिस शख्स की जिम्मेदारी है कि वहां पर गिनती करना, उसकी तरफ अरकान एक कतार की सूरत में जाएंगे और वहां पर उनको एक खास नंबर अलॉट किया जाएगा। उस नंबर के बाद उन अरकान को वहां पर रुकना होगा जब उनका नाम पुकारा जाएगा और इसी तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जब उनका वोट रिकॉर्ड हो जाएगा तो उन्हें उस चैम्बर से चले जाना होगा और उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक तमाम अरकान का वोट रिकॉर्ड कर लिया जाए और फिर दोबारा घंटियां बजाई जाएंगी। जब तमाम अरकान अपना वोट रिकॉर्ड कर लेंगे उस वक्त स्पीकर इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि तमाम अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त कौमी असेंबली में तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक घंटी बजाई जा रही है ताकि कोई भी अरकान असेंबली जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है वो इस इजलास में आ जाएं, चूंकि उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ना लॉबी से कोई बाहर जा सकेगा और ना ही कोई लॉबी में अंदर आ सकेगा। इस वक्त ऐवान में तरीकाकार जो कि अभी स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसे ने बताया है उसके मुताबिक घंटियां बजाई जा रही हैं, जिसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ना कोई अंदर सकेगा ना कोई बाहर जा सकेगा और उसके बाद बाकायदा इस कार्रवाई का आगाज होगा, जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने फैसला किया था कि वो इस हाउस से एतमाद का वोट लेंगे, उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। आज एक अहम एक बड़ा दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और इस इजलास की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली ने तरीक़ेकार से आगाह किया है। इस वक्त ऐवान में घंटी बजाई जा रही है। जैसे ही उसका वक्त खत्म हो जाएगा दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ना कोई अंदर आ सकेगा ना कोई बाहर जा सकेगा, जिसके बाद इस कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा, जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। सेनेट इलेक्शंस में हुकूमत के नामजद करदा उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया था कि वो कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। ऑपोजिशन ने बहरहाल इस इजलास का बॉयकॉट का फैसला किया है और अब ये इजलास शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने तरीकाकार बताया है। ऐवान में घंटी बजाई जा रही है। जैसे ही घंटी बंद होगी इसके बाद दरवाजे यहाँ के बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा, जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। तमाम अरकान अपना वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद, जो कि एक डिवीजन लिस्ट के तहत होता है, जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और वो चेंबर से चले जाएंगे तो इस वक्त जो कौमी असेंबली का इजलास जारी है इसमें सेक्रेटरी वो डिवीजन लिस्ट स्पीकर के हवाले करेंगे और जो गिनती की जाएगी उन वोट्स की जो अरकान की जानिब से वजीर आजम के एतमाद के वोट के लिए डाले गए हैं और उसके बाद वो लिस्ट स्पीकर को दे दी जाएगी, जिसके बाद दोबारा घंटी बजाई जाएगी 2 मिनट के लिए और फिर तमाम अरकान असेंबली वापस चैम्बर में आ सकेंगे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से एतमाद की इस तहरीक के ऊपर जो वोटिंग हुई है उसके नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रज़ाकाराना तौर पर एतमाद का वोट लेने का फैसला किया और जो हुकूमती तादाद है इस असेंबली में वो 156 है। इत्तेहादियों के साथ इन नशिस्तों को अगर गिना जाए तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशिस्तें हैं, MQM के पास 7, GDA के पास 3, अवामी मुस्लिम लीग के पास 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5, जमहूरी वतन पार्टी के पास 1 नशिस्त है। इसके अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस तरह से हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 180 बनती है। वफाकी वजीर शेख रशीद कह चुके हैं कि इसमें कोई ऊंच नीच हुई तो अपोजिशन के लिए अजीब दिन होगा, जबकि अपोजिशन जिसकी तादाद मुस्लिम लीग नून की 83 और पीपल्स पार्टी के पास 55 है, उन्होंने इस इजलास का बॉयकॉट कर रखा है। All the entrances to the lobbies be locked. Now I read out the resolution before the Assembly. Please,
Order in the House, please. Attention, please. It has been moved that this House reposes confidence in the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, as required under Clause 7 of Article 91 of Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The honourable members who wish to vote in favour of the resolution should proceed to the lobby on my right side for recording their votes, please. एतमाद के वोट की इस तहरीक में वोटिंग का अमल अब तकरीबन शुरू हो गया। आप अरकान को देख सकते हैं कि वे कतार की सूरत में, जिस तरह स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने बताया कि उनके दाएं जानिब जो लॉबी का रास्ता है वहां पर अरकान को जाने की हिदायत की गई है और उस जगह पर अमला मौजूद है जो कि अरकान के डिवीजन नंबर और उसके बाद उनके नाम के मुताबिक उनका वोट रिकॉर्ड करेगा और इस तरह अरकान असेंबली एक एक करके असेंबली हॉल से, असेंबली चैम्बर से बाहर जाते जाएंगे। जब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा उस वक्त सेक्रेटरी कौमी असेंबली डिवीजन लिस्ट के मुताबिक जो रिकॉर्डेड वोट हैं उनकी तफसील स्पीकर कौमी असेंबली के हवाले करेंगे, जिसके बाद दोबारा घंटी बजाई जाएगी और वो अरकान असेंबली जो कि अपना वोट रिकॉर्ड करवा चुके हैं और चैम्बर से बाहर जा चुके हैं वो फिर वापस असेंबली हॉल में आएंगे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली इन नताइज का ऐलान करेंगे। आइन की 8वीं तरमीम के मुताबिक जो इस वक्त कार्रवाई जारी है इसमें माजी में तकरीबन जो वज़राए आज़म आए हैं उनमें एक बड़ी तादाद है जिन्होंने एतमाद का वोट असेंबली से हासिल किया। 1985 से 2008 तक जो वज़ीर आज़म शामिल हैं उसमें बेनज़ीर भुट्टो भी हैं, नवाज शरीफ हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात, शौकत अजीज़ और यूसुफ रज़ा गिलानी एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। 2009 में 18वीं तरमीम के तहत जो शिक है उसको ख़त्म कर दिया गया था वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट लेने की, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रज़ाकाराना तौर पर ये एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया है। 3 मार्च का सेनेट का इलेक्शन जिसमें इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर मुकाबला था पीडीएम के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे। अब यहाँ पर बाकायदा कार्रवाई का इजलास में आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज इस हाउस से एतमाद का वोट लेंगे वो मौजूद है हाउस में, दीगर अरकान कौमी असेंबली भी मौजूद हैं। इस हवाले से कल मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहा। 3 मार्च को जो सेनेट इलेक्शन हुआ था जिसमें हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उनके नामजद करदा उम्मीदवार हफीज शेख शिकस्त खा गए थे। मद्दे मुकाबिल थे उनके पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी। हुकूमत अक्सरियत में होने के बावजूद शिकस्त खा गई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो रज़ाकाराना तौर पर इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और इस इजलास का ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया है। इस वक्त आप जियो न्यूज पर देख सकते हैं जो नाखुशगवार वाकयात थे सुबह असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर। वहां पर एहसन इकबाल और मुर्तजा जावेद अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं। इस दौरान जो एहतजाज किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, उसके दौरान एक जूता उछाला गया जो कि एहसन इकबाल के सर पर लगा। आप इस वक्त इन मनाजिर में देख सकते हैं। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल थी, कशीदा माहौल रहा पार्लियामेंट हाउस के बाहर। मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो कि शदीद नारे लगा रहे थे, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था और फिर धक्कम पेल तल्ख कलामी का सिलसिला रहा यहाँ पर, जिसमें मुसादिक मलिक और शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक मरियम औरंगजेब को भी धक्के दिए गए और इसके साथ ये मंजर भी सामने आया है कि एक जूता उछाला गया जो कि एहसन इकबाल के सर पर लगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, उनके लिए वहां पर पोडियम पहले से मौजूद था और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने वहां पर अपना एहतजाज किया और नारे लगाए, जिसकी वजह से इन दोनों तरफ से तसादम हुआ और उसके बाद इस तरह के मनाजिर सामने आए थे। वकार सती जियो न्यूज के नुमाइंदे जो कि इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं और इस सारे वाक़े को कवर कर रहे थे। वकार, एक तो ये बताया शाहिद खाकान अब्बासी ने भी और मुसादिक मलिक ने भी मरियम औरंगजेब को भी वहां पर धक्के दिए गए, उन रहनुमाओं को खुद भी धक्के दिए गए। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जूता उछाला गया जो एहसन इकबाल के सर पर लगा।
जी बिल्कुल, जो ये जूता उछाला गया, इसके अलावा जो असल झगड़ा जहां से शुरू हुआ, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो नारेबाजी हो रही थी और उसके बाद ये कायदीन मुस्लिम लीग नून के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब जाने लगे तो मरियम औरंगजेब को एक वो कारकुन है उसने लात मारी और वहां से जो है वो बात आगे वो शुरू हुई। फिर शाहिद खान अब्बासी और मुर्तजा वो मलिक उस शख्स के वो पीछे गए, जबकि एहसन इकबाल जो है वो ऊपर एक ऊंची जगह पे जो बिजली के लिए वो बनाई गई थी जगह, उसके ऊपर खड़े हो गए तो उनको जूता मारा गया। इसके अलावा जो वो नारेबाजी भी यहाँ पे पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी वो जारी थी। और जो शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक वो मलिक एक फुटेज में जो एक वो शख्स के पीछे भाग रहे हैं और बाद में उसको काबू करके वो काबू भी किया, उसी शख्स ने वो मरियम औरंगजेब को लात मारी थी, जिसकी तमाम जो फुटेजेस हैं वो हमारे पास वो मौजूद हैं। और वो इसके अलावा जब ये दोबारा वो पार्लियामेंट ऑफिस की तरफ गए तो वो गालम गलोच भी शुरू हो गई और उसके बाद जो मैन हैंडलिंग वहां पे वो की गई। और ये सारा जो काम है ये वो 20 से 25 मिनट तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो इस्लामाबाद की पुलिस की जो नफरी है वहां वो पहुंची थी। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त सिर्फ 3 से 4 जो गेट पे होते पुलिस एहलकार होते हैं फौजिस के, वो दौड़ कर आए थे। इसके अलावा पुलिस का कोई भी अफराद वहां पर वो मौजूद वो नहीं थे। ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं जो जूता मारा गया, ये एन वही जगह है जहां पर पीडीएम के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और ये जो ऊंची जगह है यहाँ पे जो मीडिया के अरकान है माइक अपने रखते हैं, तो जब ये सब लोगों ने घेर लिया तो मुर्तजा जावेद अब्बासी और एहसन इकबाल ऊपर ऊंची जगह पे खड़ा हो गए थे और दूसरी तरफ से एक जूता जो आया है वो लगा। वकार, बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वो यहाँ पर किसी लिए आए थे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने कल रात को ऐलान किया था कि हमने यहाँ 11:10 पे इनके जो कायदीन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उनके लिए वहाँ पे मीडिया वो मौजूद था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को यहाँ पे हुकूमत से या वज़ीर-ए-आज़म से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे वो बुला रखा था। ये जो जगह है ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, वो परेड एवेन्यू और पार्लियामेंट लॉजिस के बिल्कुल वो दरमियान में। यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हमेशा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल से ऐलान वो कर रखा था। जिस वक्त पीटीआई के तकरीबन कोई 100 के लगभग कारकुनान उस वक्त यहाँ वो मौजूद थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, लेकिन उस वक्त ये दूर थे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पीटीआई के अरकान असम्बल हुए और वो नारेबाजी करते हुए हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे और पीडीएम की जो क़यादत है उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हुए वो उस जगह पहुंच गए। फुटेजेस में हम ये भी वो मौजूद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हल्ला गुल्ला और वो शोर शराबा वो था। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई तो कायदीन आने लगे तो राना वो सनाउल्लाह ने वो मरियम औरंगजेब को आगे किया कि आप जाएं, और जैसे ही वो आगे गई तो पीछे से एक वो शख्स ने आके उन्हें लात मारी, उसकी भी फुटेज मौजूद है। और उसके बाद जो है वहां से ये बदमजी वो स्टार्ट हो गई। बाद जब शाहिद खान अब्बासी को और मुर्तजा वो मलिक को के मुसद्दिक मलिक को जब ये पता चला तो वो भी दौड़ते हुए आए। उस जो नौजवान था उसको उसकी जो वो शिनाख्त के बाद वो उसकी तरफ वो भागे, बाद ने उनको पकड़ लिया और जब उसको उन दोनों ने पकड़ लिया तो पीटीआई के और कारकुनान ने शाहिद खान अब्बासी का गिरबान पकड़ा, मुसद्दिक मलिक वो जो है उनको भी पकड़ा। और ये वाला सारा मंजर जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट वो जारी रहा, जबकि पुलिस तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पर पहुंची। उसके बाद डिवीजन की गई कि पीटीआई के लोगों को जबरदस्ती एक साइड पे किया गया और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनको पार्लियामेंट लॉजिस जाने दिया गया। वकार, ये बताइएगा, आमतौर पर जब सियासी तौर पर एक अहम दिन हो मुल्क में तो सिक्योरिटी के कोई गैर मामूली इंतजाम किए जाते हैं, और आज इंतजाम कैसे थे? देखिए, सिक्योरिटी के लिए या रेंजर्स जब पुलिस को पार्लियामेंट का जो गेट नंबर 1 है वहां पे थी, ये जो मेन डी चौक का जो गेट है, जो गेट वो परेड एवेन्यू के ऊपर लगाया गया है, वहां पर वो पुलिस थी। ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, वहां पे वो कोई, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान थे जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब थी वो यहाँ पर वो मौजूद थी। मीडिया यहाँ पर मौजूद था। 11:10 का टाइम कल से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दे रखा था कि वो यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करनी है। और गुज़िश्ता एक अरसे से यहाँ पर वो जो है वो तवाक़त से मुस्लिम लीग नून के जो वो कायदीन है बिलखुसूस वो इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो स्टार्ट हुई तो वो जो पीटीआई के लोग थे असेंबल हुए और यहाँ पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। जी अच्छा जी,
जैसे आपने बताया है कि मरियम औरंगजेब साहिबा भी जब आगे बढ़ी हैं तो उनको भी किसी की जानिब से लात मारी गई है। ये वही कारकुन था जिसकी जानिब से जूता उछाला गया है। एहसन इकबाल की तरफ फुटेजेस चूंकि मौजूद है, कि जिस शख्स ने मरियम औरंगजेब को लात मारी है उसकी फुटेज मौजूद है। उसी शख्स के पीछे शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक वो आगे हैं, इसकी भी वो मौजूद है। जब इन दोनों ने जाके उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको उन्होंने काबू किया, तो पीटीआई के दीगर जो वहां पे लोग वो मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक से हाथापाई की और उस कारकुन को वहां से छुड़ाया। अब जिस शख्स ने जूता मारा है इसकी वो शिनाख्त नहीं हो सकी है, क्योंकि ये दूसरा, इसका एंगल दूसरा है। वहां पे चूंकि इस मौका के ऊपर तकरीबन 150 लोग यहाँ पर वो मौजूद था, लेकिन मरियम औरंगजेब के साथ जो वो मिस हैंडलिंग हुई है, जिस शख्स ने उनको लात मारी थी, जहां से ये बात वो स्टार्ट हुई थी, उसकी फुटेज वो मौजूद है। और वही शख्स है जिसको शाहिद खान अब्बासी ने और वो मुसद्दिक मलिक ने वो शिनाख्त करके उसके पीछे वो भागे। उसको जब वो काबू किया तो पीटीआई के दीगर जो लोग थे उन्होंने उनके साथ शाहिद खान अब्बासी का गिरबान भी पकड़ा, मुसद्दिक मलिक का गिरबान भी पकड़ा और वहां पे मारामारी शुरू हुई। जी, वकार सत्ती ने जो तफसील बताई है, इसमें एक वीडियो आपके सामने है। एहसन इकबाल पर जो जूता उछाला गया उनके सर पर लगा भी, और दूसरे भी मनाजिर हैं जो बहुत अफसोसनाक है। यहाँ पर ये हंगामा आराई और तसादुम की सूरत हाल रही, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मौजूद थी, उनको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक धक्के भी दिए गए हैं। वकार सत्ती जियो न्यूज के रिपोर्टर जो वहां पर मौजूद थे वो ये कहते हैं कि कुछ कारकुनों ने उनको वहां पर धक्कम पेल का निशाना बनाया और उनको टांग भी मारी गई। उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये सारा मंजर पार्लियामेंट लॉजेस, पार्लियामेंट हाउस के बाहर था, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहां पर एक तरह से बज़ाहिर जो मनाजिर थे उसमें धावा बोल दिया था, और वहां पर पुलिस एहलकार भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे जो उन कारकुनों को रोक सकते या उनको किसी किस्म की हंगामा आराई से बाज रख सकते, जिस पर सख्त तनकीद की है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, शाहिद खान अब्बासी ने, मुसद्दिक मलिक ने। और उसके बाद एहसन इकबाल इन तमाम रहनुमाओं को लेकर पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ चले गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी होनी है यहाँ पर, जिसके इस इजलास में ये फैसला किया जाएगा आगे की हिकमत अमली का। कौमी असेंबली के इस इजलास का अपोजिशन पहले ही बॉयकॉट कर चुकी है, जिसके बाद जब यह हंगामा आराई और तसादुम हुआ तो पुलिस एहलकार वहां पर काफी देर बाद पहुंचे, जिन्होंने इस सूरत हाल को कंट्रोल किया और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहां से चले गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने न सिर्फ वहां पर नारे लगाए और शदीद एहतजाज किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को धक्के भी दिए हैं और वहां पर काफी देर तक एक हंगामे की सूरत हाल रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस पर शदीद मज़म्मत की है, शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को वहां पर तनकीद का निशाना बनाया। उसके तकरीबन 15 मिनट बाद कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो गया, जिसकी कार्रवाई दूसरी जानिब आपके सामने जारी है। एतमाद के वोट की जो तहरीक पेश की गई है उसके ऊपर वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त वो मंजर सामने आ गया है, मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जिनसे बदसलूकी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और मरियम औरंगजेब आपके सामने है, जहां ना सिर्फ उनको वहां पर धक्के पड़े बल्कि वकार सत्ती ये बताते हैं, और इसकी वीडियो भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखा सकें कि कुछ कारकुनों की जानिब से उनको टांग भी वहां पर मारी गई है, जिस पर मुसद्दिक मलिक और शाहिद खान अब्बासी ने भी उसका जिक्र किया और शदीद मजम्मत की इस बात की, उनसे बदतमीजी की गई और वहां पर एक हंगामा हो रहा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, शदीद नारे लगाए जा रहे थे, धक्के दिए जा रहे थे, तल्ख कलामी हो रही थी, और उसी दौरान ये वाकया पेश आया जिसके मनाजिर इस वक्त आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ पर मौजूद थी वहां पर, जहां उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से बदतमीजी की गई। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब पीटीआई के कारकुनों और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो कि ग्रीन एरिया में मौजूद थे मीडिया टॉक करने के लिए, उनके दरमियान धक्कम पेल हो गई, कशीदगी की सूरत हाल काफी बढ़ गई। ये मरियम औरंगजेब साहिबा है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान, जिन्हें पीटीआई के कारकुन की जानिब से टांग मारी गई है। इससे पहले जो हमने आपको मनाजिर दिखाए थे वो एहसन इकबाल के थे, जिन पर पीटीआई के ही कारकुन की जानिब से जूता उछाला गया था। अब जो आप मनाजिर देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले के ही हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा को बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, ये मंजर भी हमारे सामने है, बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। शाहिद खान अब्बासी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी काफी बदसलूकी यहाँ पर की गई, बदतमीजी की गई, धक्के दिए गए उन्हें, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बदतमीजी की। जिस वक्त ये वाकया पेश आ रहा था, आप से बात की है, अभी तक ऐसा
ایسا نہیں ہوا. آپ درست فرما رہی ہیں, اور پارلیمنٹیرینز کا حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں جائیں, پارلیمنٹ کے اجلاس میں جائیں, اور کارکن اگر تحریک انصاف کے کوئی احتجاج کرنا چاہتے تھے یا ان کی اس کی اجازت حاصل کر رکھی تھی تو ان کا بھی یہ حق تھا. لیکن وقار ستی جیو نیوز کے نمائندے, ان کے مطابق ایسی صورتحال میں خاص طور پر, اور پھر اس جگہ پر جو مقام ہے دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے, کسی قسم کی کوئی ریلی نکالنا, احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر تحریک انصاف کے کارکنوں کو وہاں آنے کی اجازت کس طرح دی گئی, وہ بھی ایسے خاص موقع پہ کہ جب پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہونا ہے. وہاں پر پولیس کیوں موجود نہیں تھی جو اس ناخوشگوار واقعے کو پیش آنے سے روکتی, اور اگر کوئی کارکن وہاں پر آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے تو انہیں بتایا جاتا کہ انہیں اس کی اجازت نہیں ہے. فعلی اعتماد کے ووٹ کی تحریک کے بعد اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنے کی کارروائی میں اس وقت شامل ہے. وقار, ہم نے بات کی بے نظیر شاہ سے اور سہیل وڑائچ صاحب سے جنہوں نے اس رویے کی مذمت کی ہے. آپ نے ہی یہ بات بتائی کہ دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے, یہاں پر کسی قسم کے احتجاج اور ریلی کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہوتی. کیا تحریک انصاف کے کارکن ایک ریلی نکالنے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ووٹ ڈالے جا رہے تھے, اس کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ The bell be rung for 2 minutes to enable the member to return to the chamber. اعتماد کے ووٹ کی اس تحریک کی کارروائی کے دوران ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کا اعلان کیا, اور پھر جو طریقہ کار طے ہے اسمبلی رولز کے مطابق اس پر انہوں نے اعلان کیا کہ 2 منٹ کے لیے گھنٹی پھر سے بجائی جائے گی تاکہ تمام اراکین اسمبلی جو کہ اپنے ووٹ ریکارڈ کروانے کے بعد لابی سے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے تھے وہ اب واپس چیمبر میں آ سکیں گے, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کی اس تحریک کے اندر ووٹ ریکارڈ کیے جانے کا نتیجہ سامنے لایا جائے گا. اب سے تقریباً 45 منٹ پہلے یہ کارروائی شروع ہوئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کارروائی کا آغاز کیا, جب انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے دائیں جانب اراکین اسمبلی جا سکتے ہیں, جو کہ اعتماد ان کے اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت کے مطابق دائیں جانب اس لابی سے اپنا ووٹ. اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ میں اب سے کچھ دیر میں ہی رزلٹ جو ہے یہ قومی اسمبلی میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اپنی نشست پر پہنچ چکے ہیں. چودھری تفصیل بتا رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں, ووٹنگ کے عمل کے بارے میں. وزیر اعظم بھی اب واپس اسمبلی میں آ چکے ہیں. قومی اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے, اور اب سے کچھ دیر بعد ایک اعتماد کا ووٹ جو وزیر اعظم عمران خان آج لے رہے ہیں قومی اسمبلی سے, اس کے نتائج کا ماحول رہا. تصادم اس وقت ہوا جس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما ایک مختصر پریس کانفرنس کرنے کے لیے پارلیمنٹ لاجز کے قریب آئے. اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت بات کر رہے ہیں. میں رزلٹ اناؤنس کروں, پلیز اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب نے 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے, اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہے ہیں.
آپ تشریف رکھے. مجھے ایک منٹ, مجھے پراپر ریزلٹ اناؤنس کرنے دے. پی ایم سے بڑھ جائے. Now I announce the result. پلیز آپ تھوڑی دیر خاموشی کر لیں. تھوڑی دیر خاموشی کر لیتے. Now I announce the result. اب مجھے آپ ریزلٹ اناؤنس کرنے دیں پلیز. پلیز تشریف رکھے. تشریف. Now I announce the result. 178 members recorded their votes in favor of resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of. آپ تھوڑا میں یہ پورا رولنگ پڑھ لوں پلیز. 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. عامر لیاقت صاحب جو ہے نا کچھ کہنا چاہتے ہیں. عامر لیاقت صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نعت 178 ووٹ لینے پر میں خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوسری مرتبہ ووٹ آف کانفیڈنس سے بتا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی دوسری مرتبہ بنیں گے. میں تو آقا کے در کا گدا ہوں. میں تو آقا کے در کا گدا ہوں. کیسے زندہ رہوں بن مدینہ. کیا خبر کب مجھے رب بلا لے. کیا خبر کب مجھے رب بلا لے. مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ. میں تو آقا کے در کا گدا ہوں. یہ شعر قابل توجہ ہے خان صاحب. مجھ کو رنجو علم نے ہے گھیرا. میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا. میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا. مجھ کو رنجو علم نے ہے گھیرا. میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا. اب تو دیجئے سہارا محمد. اب تو دیجئے سہارا محمد. درد سے بھر گیا میرا سینہ. اب تو دیجئے سہارا محمد. مجھ کو کرسی کی چاہ نہیں ہے. مجھ کو کرسی کی. میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو. وزیر اعظم صاحب, آپ کو ایوان نے اعتماد دیا ہے. ہم نے آپ کو وقت پر اعتماد دیا ہے. اب آپ وقت پر اس ایوان کو اعتماد دیں. آپ کو اعتماد ملا ہے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس اعتماد کو قوم کو لوٹائیں. قوم کو اعتماد دیں, قوم کو اعتبار دیں. اور آپ کے اتحادی اس موقع پہ بھی ہر مشکل وقت میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئے. اب آپ کے فیصلوں میں ان کی رائے کا شامل ہونا آج کے دن کا قرض ہے. اور ہمارا آپ سے وعدہ نقد وعدہ ہے, ادھار وعدہ نہیں ہے.
बरवक्त वादा पूरा किया जाता है। और ये ऐवान जानता है कि हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे नहीं है, डिस्पेंसिंग एंड में भी है। हम सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं है, देने वाला हाथ भी है। और हम ये चाहते हैं कि आप कौम को ये इत्मीनान और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। आइए वजीर आज़म साहब, ये ऐवान मिल के ख्वाब देखें। ये मार्च का महीना है, ख्वाब देखने का महीना है कि 23 मार्च 1940 को मुसलमाना ने बर्र सगीर ने एक वतन का ख्वाब देखा था। 1940 में और 1947 में उस ख्वाब को वतन की शक्ल में, पाकिस्तान की शक्ल में मुमकिन भी बनाया है। 7 साल में हमने वतन तो हासिल कर लिया जनाब स्पीकर, लेकिन 70-74 साल में हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान महज पाकिस्तान मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था। हम चाहते हैं कि ये मकसद आपके हाथों पूरा हो, और कुछ नहीं कर सकते हम तो कम से कम इस ऐवान में खड़े होके वो शहर जो आप इस पूरे पाकिस्तान को हर रुकावटों के बावजूद, हर जबर के बावजूद, हर ज्यादती के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी के साथ 70%, 60% रेवेन्यू दे रहा है, आज वो रहने के काबिल नहीं है। शहर लिवेबल शहर नहीं है। पाकिस्तान का एक जमाने में तीसरा बड़ा शहर, जो आज भी सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, एक यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है। और हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे इस उम्मीद पर कि आपने जो पाकिस्तान की आवाम से वादे किए हैं वो वादे वफा होंगे। हम एक बेहतर पाकिस्तान, एक तब्दील पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान हम आपके जरिए पाकिस्तान की आवाम को लौटा सकेंगे। से एक दफा फिर सबने अपना कॉन्फिडेंस आप में रिपोज किया है, दिया है एक दफा। मैं समझती हूँ ये बहुत खुशाइन बात है। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एलाइड पार्टीज किसी भी हुकूमत की बहुत बड़ी ताकत होती है, और खास तौर पे जब चारों सूबों के से अगर ये एलाइड पार्टीज आ रही हों तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे अपने इश्यूज होंगे, हमारे अपने बहुत से ऐसे ग्रीवेंसेस होंगे जो हम आपके साथ बंद कमरे में तो करेंगे, लेकिन और आज भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे कॉलीग ने भी बात की। लेकिन जब भी जमहूरियत की मजबूती की बात आएगी, जब भी कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस की बात आएगी, तो आप अपने एलाइड्स को अपने साथ पाएंगे। स्पीकर साहब, ये नौबत क्यों आई? हालांकि प्राइम मिनिस्टर को ये वोट लेने की इस तरह जरूरत नहीं थी। ये क्यों नौबत पेश आई? जब से सेनेट की अनाउंसमेंट हुई तो जो माहौल यहां पे पाया जा रहा था, और 218 की क्लॉज, सब क्लॉज 3, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. I will repeat, Speaker Sahab, and that corrupt practices are guarded against. कौम ने क्या देखा? डले हैं, कोई बात नहीं हो रही। क्या को हेड करता है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। मैंने टोन सेट की थी कि अवामी मसाइल के लिए ये पार्लियामेंट इस्तेमाल हो, ना कि जातियात के लिए, अपने मफादात के लिए। स्पीकर साहब, बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं कहती हूं, ये ऐवान वो